Hello everyone, welcome to the very own channel, The Medico's Physiology. For my new viewers, this is Sanchee Santhosh and this is my third video. So today we'll deal with ECG. So this video I would be splitting up in two parts, two videos. This would be the part 1 and other would be the part 2. Part 1 we will be dealing with all the concepts present in this topic, under this topic, that is ECG, and part 2 will be more towards the clinical correlation. So wait for that too. And for this video and the next video I have crossed through many sites, plus I have read through many books, plus watched many videos too, for getting the quite accurate details and especially the numeric data in this topic. So this has took a lot of hard work, so please do subscribe. It would add value to me, my channel, and my hard work too. So not making much time, let's get started. What is ECG? Right, ECG is electrocardiogram. Electrocardiogram is the name of the process. Okay, now what is electrocardiography? That's the record that जिसमें जो अब record आपको मिलते हैं, the final जो देख के डॉक्टर्स अपना डायग्नोसिस बताते हैं. तो now what does ECG basically do? ठीक है, तो ECG is, you have seen it. Okay, कब पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो देखा ही होगा. अपना खुद का कराया हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, या फिर कुछ नहीं तो इंटरनेट, टीवी शोज में कहीं ना कहीं तो ये देखा ही होगा. राइट, सो व्हाट इट बेसिकली डू इज कि ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को. राइट, इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. सो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, इसको हम लोग कैसे नापते हैं. यू हैव सीन कि कुछ वाइट या फिर कोई कलर का चेस्ट पे या फिर बॉडी एरियाज में लगाया रहता है, और दीज आर नोन एज लीड्स. इट हैज गॉट इलेक्ट्रोड्स. ओके, सो दीज आर कनेक्टेड टू अ मशीन एंड नेगेटिव पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड्स उसमें. तो दीज आर द थिंग्स. ओके, तो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. तो दीज आर attached to the body surfaces to get these electrical impulses. ये body surface पे क्यों attach करते ताकि मिल जाए? Because what happens is कि when the heart conducts the electrical impulses throughout the heart, like you know that SAN generates the impulses. last class में चल गया. impulses से then AVN में जाता है, then apex पे जाता है, and then it goes to the all parts of the body. right, तो जब वो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये सिर्फ हार्ट में नियर बाय सरफेसेस में भी जाता है. सो द नियर बाय चेस्ट एरिया एंड एरियाज आगे भी चले जाता है. सो दैट्स व्हाई दे आर रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग दीज लीड्स ओवर द बॉडी सरफेसेस to get these electrical impulses. Okay, now this ECG has got, you can't say it's as a characteristic feature, but better say its components. ECG का 3 main components होते हैं. Now it's first is segment, waves, interval. अब segment, waves, I'll tell you. What is interval is एक segment at least और एक wave हो, a segment and a wave, you can together call it as interval. Okay, at least a wave, at least a segment. बहुत सारे दो सेगमेंट एक वेव दो वेव एक सेगमेंट, ये सब ठीक है, बट एटलीस्ट एक वेव एक सेगमेंट होना चाहिए, तब जब उसे इंटरवल बोलेंगे. ओके, नाउ सेगमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक PR सेगमेंट है, एक ST सेगमेंट है. waves आके P wave, QRS wave, T wave. This you have already studied. Now PR and intervals आके PR interval, RR interval, QT interval, ये भी होता है. So now first we'll go through one by one. First we'll take up segments. Okay, now what is segments? Now segments are straight line basically. Now let's see, just मतलब मैंने एक ऐसी डायग्राम बनाया है. This is it. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स है, these are known as the segments. because ये straight lines है, इसका क्या मतलब इसमें डिनोटेड है कि इसमें कोई करंट
नहीं पार होता, मतलब इस टाइम पे कोई करंट पार नहीं हो रहा है, ठीक है. दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, राइट. तो अब फर्स्ट विल सी पी आर सेगमेंट. तो पी आर सेगमेंट इज फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव to the start of QRS complex. Let's see. From the end of P wave to the start of QRS complex. This is PR segment. Right? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक PR segment है, QRS complex. ठीक है. और now this occurs when ये जो AV nodal delay I told it's a physiological delay happening at the AV node so that it can cause the complete emptying of blood into the ventricles, right. ये होता था, तो ये AV node में होता था. ये जब होता है तब वो ग्राफ में डिनोट एज अ PR सेगमेंट, ठीक है. नाउ द टाइम ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड. नेक्स्ट इज ST segment. Now it is from the end of QRS complex to the start of T wave. End of QRS complex to the start of T wave. This is ST segment. ST segment, ठीक है. ये PR क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, ठीक है. मैं विल टेल यू. तो अभी PR और ST segment. So you saw here ST segment, right. तो अभी इसमें ST segment में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द J पॉइंट, कंप्लीट जॉइनिंग पॉइंट, ठीक है. तो कंप्लीट बोलने से जॉइनिंग पॉइंट होएगा या फिर J पॉइंट, राइट. नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पॉइंट. तो ये J पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका QRS कॉम्प्लेक्स एंड होता है एंड ST सेगमेंट शुरू होता है, दैट इज द ST सेगमेंट का बिगनिंग, ठीक है. तो ये J पॉइंट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज दिस जॉइनिंग पॉइंट इज बिटवीन व्हाट इट जॉइंस इज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन. सो एक्चुअली ये जो QRS वेव्स है ये डिपिक्ट करता है कुछ कुछ. तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये आके डिपिक्ट करता है वेंट्रिकुलर depolarization and T wave depicts the ventricular repolarization. So it is the joining point of these two. Okay, so that we will see when we see the waves. Okay, तो अभी now if the abnormal part, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है सेगमेंट, ST सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसमें एलिवेशन या डिप्रेशन हो जाए तो उसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा. So if there is an elevation, this is very important. If there is an elevation, then it is the person is suffering from MI, that is myocardial infarction. What is infarction? या अगर उस ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई ना मिले तो व्हाट विल हैपन कि वो टिश्यू को डेथ हो जाएगा. तो यहाँ पे मसल है तो मसल का डेथ हो जाएगा. सो दैट इज मायोकार्डियल इज मायो मसल ऑफ कार्डियक, दैट इज हार्ट. Myocardial infarction. Okay, now if there's a depression, so then it is the person is suffering from myocardial ischemia. Ischemia is decreased blood supply to an organ. That is blood supply बंद हो जाने से मसल डेथ हो जाती है. यहाँ पे ischemia is decrease हो जाना blood supply, ठीक है. So that's the two things. Elevation to myocardial infarction, depression is में myocardial ischemia. Okay, now next is waves. Now what does P wave denote? P wave denotes the atrial depolarization. जब atrial depolarize करेगा का रिकॉर्ड में P wave शो होगा. तो अगर मान लो ये एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका हाइट बढ़ गया, इसका लेंथ कम, जब इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्या होगा, दैट मीन्स इट इज डिपिक्टिंग द एट्रियल एनलार्जमेंट. एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिपिक्ट करता था. तो अगर एबनॉर्मलिटी दिखे तो इट इज सेइंग दैट पर्सन में एट्रिया का एनलार्जमेंट हो गया. तो ये कैसा डिनोट होएगा, बाय टॉल एंड पीक्ड वेव्स. पी वेव्स अगर टॉल और पीक वेव्स आ जाए तो दैट मीन्स द पर्सन्स एट्रिया इज एनलार्ज्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज QRS कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब QRS कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी टोल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट करते हैं ना. इसका ड्यूरेशन आकर 0.08 सेकेंड से 0.10 सेकेंड्स, ठीक है. अब यहाँ पे आपका हार्ट का जो एट्रिया है ये डीपोलराइज हुआ है, तो उसको रिपोलराइज भी तो होना है.
राइट। तो ड्यूरिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका एट्रिया का रिपोलराइजेशन भी होता है। मेनली इट डिनोट्स द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बट इट हैज atrial repolarization too. कब होता है? आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पी वेव आफ्टर 0.15 सेकेंड्स टू 0.20 सेकेंड्स का बाद, पी वेव का टर्मिनेशन के बाद इतना टाइम के बाद आपका एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है। ओके, एबनॉर्मेलिटी। उससे पहले द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये क्यू आर एस हो, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन है, तो ये आर एस हो गया, ठीक है, इसमें क्यू नहीं है। और एक होता है क्यू आर सीधा स्ट्रेट लाइन, इसमें डिप्रेशन आया नहीं, मतलब दैट इज एस प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे भी वेव्स है। नाउ एबनॉर्मेलिटी, राइट। अब मान लो इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब इसका हाइट, हाइट में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का हाइट में अगर प्रॉब्लम हो तो लाइक अब मान लो वो लो हो गया, तो ये कौन कौन से डिजीज में? एक एम्फाइसीमा में, मार्केट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज कि आपका जो एल्विलाई का जो लेयर है, जो वॉल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपका जो एक्सचेंज ऑफ एयर है O2 और CO2 का, वो होना, उसमें दिक्कत होगा, तो उसमें एम्फाइसीमा होता है। देन नेक्स्ट इज मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा इज लाइक सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपका थायराइड हार्मोन लो हो जाना, तो सीवियर को मिक्सिडीमा, उसमें जो भी होता है, यू विल ट्रीट दिस इन थायराइड ग्लैंड, आगे फिजिकल फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइन सिस्टम में। देन देर इज पेरिकार्डियल एफ्यूशन। पेरिकार्डियल एफ्यूशन इज हार्ट का 2 लेयर्स होता है, राइट, उसके बीच में एफ्यूजन, कुछ लिक्विड फ्लूइड फिल हो जाने से उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं। देन कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक मसल का टिश्यू में कुछ मसल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट। अब मान लो हाई हो जाए, ये हाई जब होगा तो उसका मतलब दैट पर्सन इज having suffering from ventricular hypertrophy. Hypertrophy is कि जो सेल्स है, आपको जो मसल सेल्स है, वो साइज में बड़ा हो जाएगा, सो वेंट्रिकल का साइज एनलार्ज हो जाएगा, कैसे, राइट। तो दैट इज हाइपरट्रॉफी। सो पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स क्या बोलते हैं? अगर मान लो हाइट आके 25% से ज़्यादा हो जाए, ड्यूरेशन आके 0.04 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, तो वो पर्सन में एक्यूट एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज टी वेव। दिस इज टी वेव। टी वेव इज, यहाँ पे आपका पी वेव क्या था? एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ पे आपका एट्रियल का डीपोलराइजेशन भी होता है, राइट। देन टी वेव इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गया, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज होंगे, टी वेव नोट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नाउ एबनॉर्मल इज कि अगर वो टॉल हो जाए, लंबा हो जाए, तो हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया इज पोटेशियम इंक्रीज हो जाना, तो इंक्रीज्ड पोटेशियम, या फिर मायोकार्डियल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन उसमें। अब यही चीज़ इन्वर्ट, मतलब आपको जो टी वेव है इन्वर्टेड हो जाए, इन्वर्टेड मतलब ये तो सीधे इन्वर्टेड क्या होगा, ऐसा, राइट। तो इन्वर्ट हो जाए तो व्हाट इज कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की इस सिचुएशन में दिखेगा, यंग चिल्ड्रन में दिख सकता है, अगर डीप इंस्पिरेशन किया जाए, जब रिकॉर्डिंग का टाइम में डीप इंस्पिरेशन होगा तब आप देख सकते हैं, या फिर आफ्टर अ हैवी मील, एक अच्छा हैवी मील, बिरयानी वगैरह कुछ खा के बैठे हैं तो भी ये हो सकता है। ना पैथोलॉजिकल इज अगेन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी दिखेगा ड्यू टू स्ट्रेन, देन बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी मायोकार्डियल इश्कीमिया, एंड देयर इज अ डिजिटलिस इफेक्ट। नाउ डिजिटलिस इज अ मेडिसिन, ठीक है। व्हाट इट डज इज कि जो भी बीमारी जिसमें आपको ब्लड फ्लो कम हो जाए, उसमें ये उस इंसान को दिया जाता है। तो व्हाट डज इट डू? इट कॉजेज वैसोडाइलेशन, दैट इज इट इंक्रीजेस ब्लड वेसल्स विथ, उसका जो एरिया है बढ़ाता है, इससे क्या होगा? आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, दस इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, ओके। Now this can be given in CHF, and it can be given in one more disease, atrial arrhythmias, atrial arrhythmia and CHF, congestive heart failure.
इसमें और एट्रियल अरिथमियाज में दिया जाता है. सो डिजिटालिस बंडल ब्रांच, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मायोकार्डियल इस्कीमिया. ओके, ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है. नाउ इन्वर्ट हो गया, फ्लैटन भी तो हो सकता है. तो इट कैन बी इन पेरिकार्डियाटिस एंड मायोकार्डियाटिस. कार्डियाटिस लाइक मतलब वो इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन इन्फेक्शन टाइप्स हो जाए. तो पेरी मीन्स जो पेरिकार्डियम है ना, जो आउटर लेयर. मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो मायोकार्डियाटिस बोलते हैं. ठीक है, these two are over. Now next is U wave. There's another wave. Now generally we see is P, Q, R, S and T. There's a U wave too. Papillary, there are papillary muscles. When you read the anatomy of heart, so there are papillary muscles, okay, present, which are basically like वो जो आपकी opening of जो valves है, आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो आपके राइट साइड में 3 पैपिलरी मसल्स होते हैं एंड ऑन द लेफ्ट साइड 2 पैपिलरी मसल्स. तो ये पैपिलरी मसल्स का डीपोलराइजेशन कैन बी डिनोटेड थ्रू अ यू वेव ऑन द ग्राफ. ओके, नाउ देन देयर इज इंटरवल. आई ऑलरेडी टोल्ड, एक वेव और एक सेगमेंट मिला के इंटरवल. एटलीस्ट एक वेव एंड एटलीस्ट एक सेगमेंट होना चाहिए. Now first is PR interval. So what is PR interval? It is from the beginning of P wave to the QRS complex, right? So we'll go on this graph. Beginning of P wave to the QRS complex. This is PR interval, right? This is PR interval, right? तो ये जो है इसका ड्यूरेशन अगर 0.02 टू 0.020 सेकेंड्स तक है. नाउ हार्ट रेट हो इंक्रीज होगा तो लेंथ डिक्रीज होगा. हार्ट रेट जल्दी, हार्ट रेट दैट इज हार्ट जल्दी बीट करे तो आपका जो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, नीचे जल्दी आ जाएगा, राइट? रिपोर्टाइजेशन फास्टली होने वाला है. what is its significance? Again, it has got what it has. एक PR सेगमेंट है, राइट? PR सेगमेंट है एंड प्लस P wave है. So P wave was denoting atrial depolarization. So it has a significance of atrial depolarization as it represents atrial depolarization and conduction through the AVN. Okay, ये दोनों को डिनोट करता है. क्योंकि PR सेगमेंट कब दिखता था? ड्यूरिंग द AV नोडल क्या डिले में ना, तो उसका. Now abnormalities is if there is short PR interval, then the nodal rhythm, जो नोड्स का रिदम है वो आके नॉर्मल नोडल रिदम आके आपका एवियन कंट्रोल करेगा. ठीक है, नॉर्मली पहले कौन करता था? आपका एसियन करता था. तो यहाँ पे जो नोडल रिदम है वो आके जो मतलब जब शॉर्ट पीआर इंटरवल जाए तो जो नॉर्मल कार्डियक रिदम है उस पर्सन में आपका एवियन कंट्रोल करेगा. ठीक है, नॉर्मली कौन करता था? एसियन. नॉर्मल गुड पर्सन जिसका नॉर्मल पीआर इंटरवल हो, इसमें शॉर्ट हो जाने से. देन एट्रियल प्री मैच्योर बीट्स. ठीक है, ये प्री मैच्योर वाला जो भी पार्ट है, फिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेशन, ये सब आपको नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन वाला जो वीडियो है उसमें देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. okay, do subscribe for the videos and please click on the bell icon too. Now let's continue. नेक्स्ट, अगर मान लो आपका जो इंटरवल PR इंटरवल लॉन्ग हो जाए, राइट? तो यू कैन सी दिस इन अगेन डिजिटालिस इफेक्ट में ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड इट. एंड देन अदर रिमेटिक कार्डियाटिस, राइट? कार्डियाटिस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑन द स्किन, स्किन बोलता ओवर द हार्ट. एंड रिमेटिक, यू नो देयर इज अ फीवर. रिमेटिक फीवर में ही ये नॉर्मली होता है, ठीक है, हार्ट का. Then other is coronary artery disease, CAD. Okay. Now, if there is a QT interval. QT interval is starting from Q wave to the end of T wave. So what it will have? QRS complex, T wave, and ST segment. See in this graph, QRS complex यहाँ से
ST segment and T wave, मतलब इतना, राइट, इतना लंबा वाला, इसमें 2 वेव हो गया, 1 सेगमेंट हो गया। तो अभी इस पे जब आएंगे तो इसका ड्यूरेशन आके 0.40 to 0.43 सेकेंड्स होता है। तो सिग्निफिकेंस QRS वेव क्या करता था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करता था। टी वेव क्या करता था, वेंट्रिकुलर repolarization. So this is what now QT interval is corresponding to the ventricular activity, जो भी activity repolarization and repolarization दोनों इसमें देख सकते हैं। दैट मीन्स QT आपका वेंट्रिकल के एक्टिविटी को जज कर सकते हैं, उसको डिनोट करता है। ओके, नाउ इफ एबनॉर्मल तो प्रोलॉन्ग हो जाए हाइपोकेलेमिया, हियर इट्स हाइपो मतलब लो, तो पोटेशियम लो हो जाने से देन इट कैन बी हेरिडिटरी। एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जो एरिथमिया के जो पर्सन्स में एरिथमिया होता है उसको ये ड्रग्स दिया जाता है, उसमें भी उन पर्सन में भी देख सकते हैं प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। another can be acute myocardial infarction. So then now if shortened, ये नॉर्मली लेस सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स मतलब कम ही देखने को मिलता है। अगर देखने को मिल जाए तो ये शायद हो सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमियस लो कैल्शियम, उसमें देखने को मिल सकता है। नाउ देयर इज अनदर RR इंटरवल। RR इंटरवल इज बिटवीन 2 सक्सेसिव RR वेव्स। सो व्हाट दिस मीन, ये P वेव हो गया, ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये T वेव हो गया, then again let's leave the P wave. Okay, now then again you see a P wave, you see a P wave, then a QRS complex, then again a T wave, right? तो बिटवीन ये 2 सक्सेसिव RR वेव्स का बीच में जो है होता है, इसको RR इंटरवल बोलेंगे। ये जो पूरा है RR इंटरवल है, राइट। तो ये जो होता है दिस इज यूज्ड फॉर हार्ट रेट कैलकुलेशन। सी देयर आर 2 इंटरवल्स, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे PP इंटरवल एंड RR इंटरवल। PP इंटरवल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एट्रिया का जो रेट होता है उसका कैलकुलेशन में यूज करते हैं। RR इज यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर रेट। नाउ वेंट्रिकल इज द मेजर पोर्शन, लाइक उसी का तो मेन काम है हार्ट में, जो पंप करने का काम है, जो मेन बड़ा इंपॉर्टेंट ठोस काम करता है वो वेंट्रिकल है, इसलिए उसका जो रेट है उसी को हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। सो दैट रेट इज टेकन एज हार्ट रेट हियर। सो हार्ट रेट्स कैलकुलेशन RR इंटरवल से, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1500 बाय RR इंटरवल इन mm, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। Now extra there are 3 intervals, as मैंने बहुत सारी बुक्स रेफर करने के टाइम मुझे ये 3 इंटरवल्स भी मिले हैं, so I just included these 2. Now there is ST interval, PP interval, QRS interval. जो मैंने पहले 3 बोला, that is Q3 interval, RR interval, then PR interval. These are the main one. ये 3 मैंने just an extra information, edge information के लिए मैंने इसमें include कर दिया। तो ST interval आकी, this you can see from the J point, that is ST सेगमेंट का बिगनिंग से लेके एंड ऑफ द टी वेव, राइट। द ड्यूरेशन इज 0.32 seconds and it is denoting the ventricular repolarization. Obviously ST interval वन से ST segment plus T wave क्या था, repolarization of ventricle। okay, the next is PP, already told atrial rate के लिए यूज होता है, वही इसका मेन इंपॉर्टेंस है। between the 2 successive P waves, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये पूरा आपका PP इंटरवल। तो इट इज यूज फॉर एट्रियल रेट, सेम फॉर्मूला P 1500 बाय PP इंटरवल इन mm, ठीक है। Now then there is QRS interval, ठीक है। QRS interval is the QRS complex, ठीक है, और वो पार्ट लेके तो वो आके 0.08 to 0.10 seconds. Now that is ventricular, denoting ventricular depolarization, ठीक है। Just for an extra information, this is a good, देखो ग्राफ सब है। This is P wave, this is QRS complex, then this is the T wave,
ठीक है, इसमें देखो बहुत कुछ एट्रिया वेंट्रिकल सब लिखा है. Now you can see clearly the RR wave, RR interval, sorry. Then what would be the P wave? This is PP interval. Okay, you can see ST segment, QT interval, PR interval. So beautifully it is shown in this diagram, right? Now what is ECG graph? You have seen this graph, right? इसी पे आपका ये जो जैसा होता है वैसा आता है इसके ऊपर, राइट? तो व्हाट हैपेंस कि ये जो 5 ले लो, तो अब ये 5 मेन होता है, उसमें स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्स, उसमें स्मॉल बॉक्स होते हैं. ये जो बिग बॉक्स है इसका एम्पलीट्यूड, ये लेंथ है, इसको 5 mm है. सो एक बॉक्स का कितना होगा? 1 mm. सो दिस इज 1 mm, राइट? और ये एक होता है 1 mm का, ठीक है? तो ये 1 mm का होता है, तो एक छोटा वाला क्या होता है, कितना होता है? इट वुड बी ऑफ 0.04 सेकेंड्स, राइट? तो एक्स जो एक्सिस है वो डिनोट करता है टाइम, और जो वाई एक्सिस है वो डिनोट करता है एम्पलीट्यूड को, ठीक है? तो स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड्स और वाई एक्सिस में 1 mm, राइट? अब ये जो ECG है एक मशीन है, तो वो एक स्पीड में रन होता है, तो जो पेपर ऐसा रन होगा तो उसके ऊपर में ये फुल बनता है, जो आपका ग्राफ है बनता है. तो ये जो पेपर स्पीड है यहाँ की 25 मीटर पर सेकेंड होता है, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर पर सेकेंड, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ पिछला बार क्लास में मोनोफेसिक एक्शन पोटेंशियल्स, जो एक्शन पोटेंशियल मोनोफेसिक होते हैं, तो ये जो मोनोफेसिक एक्शन पोटेंशियल्स को बारे में पढ़ा था, इस बार ECG पढ़ते हैं. क्या कोई रिलेशन नहीं है इसके दोनों के बीच में? कुछ तो होगा ना रिलेशन ना. वहाँ पे कुछ ग्राफ्स था, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है ना. व्हाट इज दिस? डिपोलराइजेशन. ओके, रीजन तो ठीक है, बट they might have some connection, so I would be telling this connection. Okay, I'll show some diagrams, they will perfectly put the thing in your mind. Okay, so now you see, ये जो था, ये आपको पता है ये आपके वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल था. कैन यू सी समथिंग? ये जो है, और ये आपका ECG है, मतलब ये कुछ डिनोट कर रहा है, राइट? दिस इज अनदर डायग्राम. अगेन दिस इज अ वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है? AP वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इज ECG. सी something it is denoting. This is the best diagram to see this. Okay, best diagram. So if you focus on this diagram, look at it. Okay, otherwise first we'll see in this one. ये इसमें क्या है, एक ECG दिया है आपका, MAP दिया है, दैट इज मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एट्रियम एंड देन द वेंट्रिकल. ये जो मेन दो है उसका दिया है. EG आके इलेक्ट्रोग्राम है, ठीक है? इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी. उसको अब छोड़ दो, ये ज़रूरत नहीं है. फोकस ऑन फर्स्ट विल सी द एट्रियम वन, ठीक है? ये देखो, ये जो आपका फर्स्ट P वेव है, ये जो राइज इन, तो P वेव डिनोट्स द डीपोलराइजेशन इन द एट्रियम. ये जो डिक्रीज होता है, एंड देन व्हेन इट डिक्रीजेस, आपका यहाँ पे इसका डिपोलराइजेशन शुरू हो गया आपका वेंट्रिकल का. इट इज शोन बाय द QRS कॉम्प्लेक्स. सी, QRS complex, and then it was repolarizing. It is shown by the आपका T wave, राइट? सो ये जब हो रहा था तब आपका QRS कॉम्प्लेक्स भी था. दैट व्हाट इट वाज, राइट? कि आपका उसमें भी डिनोट होता है. सो दिस इज showing the P wave is showing the atrial depolarization. You can see it clearly. And then the QRS complex shows the ventricular depolarization, and then T wave shows the ventricular repolarization. So this is what the ECG and monophasic I was saying, depolarization, repolarization. इसमें देखो कितना अच्छे से दिखा रहा है, डिनोट किया जा रहा है. Now look at this graph. ये हर चीज़ का बारे में बताए. ऐसे नोड का देखा ऐसा ग्राफ था, फेज जिसमें फेज 0, 3 and 4 होता था. देन एट्रिया का है ये, देन ये भी नोड का है, अगेन फेज 0 वाला सेम है.
सी दीज ऑल आर कंप्राइज्ड लाइक एक साथ होने के बाद आपका यहाँ पे डिनोट हो रहा है। तो सी ये आपका पी वेव है। पी वेव कहाँ पे है? आपका एट्रियल वेंट्रिकुलर के वहाँ पे दिखा, ऐसे नोड का वहाँ पे, तो वो टाइम में देखिएगा। देन पी आर इंटरवल इज ड्यूरिंग द ए वी नोडल डिले, राइट। तो इफ ये नोडल डिले में हो गया यहाँ पे, I can't make straight lines now. देन ओके, देन उसके बाद आपका वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है, देखो उसका यहाँ पे आपका जो भी है आपका डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पीक दिखा रहा है। देन आपका टी वेव की आपका जो रिपोलराइजेशन है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डायग्राम, ये कम्प्लीटली दिखा रहा है, ठीक है। सो आई थॉट ऑफ मेजरली शोइंग द डायग्राम्स इंस्टेड ऑफ getting you to the written records of these notes. Okay, so same here, atria का p wave, qrs complex, ventricle का ये टी वेव आके आपका ventricular reproduction complete set, how it denotes, right? Now let's see. So qrs complex हम बोल दी beginning of MAP and T wave end of MAP। now जो भी पोटेंशियल रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है, वो बीच में होते हैं, पोलराइज डिपोलराइज दोनों होते हैं। कम्प्लीटली डिपोलराइज, कम्प्लीटली पोलराइज जो भी मसल का पोटेंशियल होगा वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। नो पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड इन ईसीजी व्हेन द मसल वेंट्रिकुलर मसल इज इधर कम्प्लीटली पोलराइज्ड और कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड। ओके, ये तो हो गया कि हम लोगों को क्या रिजल्टेंट मिलेगा, बट ये रिजल्टेंट के लिए वो प्रोसेस के मतलब वो क्या तरीके के चीज़ होते हैं जिससे हम लोग ये ग्राफ को निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज यूज्ड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स, राइट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीड। फर्स्ट इज बाइपोलर लीड, second is augmented lead. Augmented lead can be also known as unipolar leads, limb leads, and then other one is the chest leads. It's also known as precordial leads. Now bipolar leads are of 3 types. 3 bipolar leads होते हैं, lead 1, lead 2, lead 3, namely यही है इनका। augmented का AVL, AVR, AVF, chest leads V1 से लेके V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। फर्स्ट विल सी bipolar limb leads, ठीक है। now this is an important topic thing, and this is Endovian's triangle. Endovian is the person who like founded this method, limb leads का जो तरीका है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका नाम एंडोवियन ट्राइंगल है। व्हाट इज बेसिकली मीन इज, ठीक है, जो आपका जो पोटेंशियल मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, एक नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल्स जो इलेक्ट्रोड्स है उसको लगाना है, ठीक है, बॉडी में। तो इसने आदमी ने क्या किया कि इसने ट्राइंगल बनाने का कोशिश किया अराउंड द हार्ट। सो इफ अब वो फर्स्ट अगर एक लीड अगर आप राइट में लगा लो, दूसरा लेफ्ट में लगा लो, तीसरा एक ट्राइंगल बनाने कहाँ में होना चाहिए, इट वुड बी इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू keep a lead over the pubic symphysis to get the measure, okay। so what he did was he chose the left leg, okay। so एक जो होता है, एक आपका राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। इट डजंट मीन कि 3 लीड्स होते हैं, 2 ही होते हैं, एक नेगेटिव होएगा, एक पॉजिटिव होएगा, बट आई एम सेइंग द पोजीशंस, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, और वो इट्स अराउंड द रिस्ट, ओके, जस्ट बिलो द रिस्ट एरिया, वहाँ पे लगाया जाता है ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड देन द लेफ्ट लेग, ठीक है। तो अब फर्स्ट लीड का क्या है मतलब से, फर्स्ट लीड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है दैट वुड बी ऑन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट पॉजिटिव विल बी ऑन द लेफ्ट आर्म, ठीक है। द देखो हम दिखाते हैं, ये देखो। सो दिस इज लीड 1, ये दोनों को हटाओ, ये दोनों को बंद रखो, देखो कैन सी इसका एक नेगेटिव वाला यहाँ है, पॉजिटिव वाला यहाँ है, राइट। सिमिलरली लीड 2 का नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द राइट आर्म, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट आर्म का नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट आर्म, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट लेग, ठीक है, लेफ्ट लेग पिछला। सो ये आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा, किसी भी याद करना ही पड़ेगा। तो इट कैन यू कैन से दैट राइट आर्म में दोनों नेगेटिव,
और लेफ्ट लेग में दोनों पॉजिटिव, उसका अकॉर्डिंगली लेफ्ट आर्म में सेट कर दो। अगर यहाँ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट। तो राइट आर्म में दोनों नेगेटिव है, लेफ्ट लेग में दोनों पॉजिटिव है, ऐसे याद कर लो। तो यू कैन मेक रेस्पेक्टिवली लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म का जो भी रहेगा वो आप सेट कर सकते हो, राइट। अब देखो, राइट आर्म यूज़ हो गया, लेफ्ट आर्म यूज़ हो गया, लेफ्ट लेग, अरे भाई राइट लेग भी तो बचा है, उसका भी तो कोई यूज़ होना चाहिए, राइट, उसका भी यूज़ है। इतना पोटेंशियल, इतना करंट्स आप अपना बॉडी के थ्रू पास करा रहे हैं, तो जो लेफ्ट लेग का जो राइट लेग है उसका भी यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर ग्राउंडिंग। ओके, तो इतना पोटेंशियल अपने बॉडी से पास हो रहा है, तो राइट leg is used for grounding. Okay. So what does grounding do? Generally, normal appliances in your house prevents from shock, right? Same thing है। करंट पास हो रहा है तो उसको शॉक प्रिवेंट करने के लिए ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सी नाउ यू मस्ट सी इज कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोड्स एक एंट्रिकल का पास होगा, दूसरा वाला कोई और डिफरेंट पोजीशन में रहेगा, तो आपको जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। अभी यहाँ में हम यूज़ करके दिखाते हैं। ये डायग्राम एकदम परफेक्ट है समझने के लिए। ओके, नाउ फॉर देम आई हैव पुट दिस डायग्राम। जिन्होंने नहीं देखा होगा, गारंटी किसी सबने देखा होगा, बट दिस इज़ हाउ कि देखो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ओवर द चेस्ट एंड आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। And then this is connected to the machine and through which these graphs are coming out, कि ये at the speed of 25 mm per second में आता है, ठीक है। So this would be the recording. EKG is nothing but electrocardiogram, बाहर में EKG हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मान लो लीड 1 में यहाँ पे जो नेगेटिव है वो -0.2 है, और पॉजिटिव आके आपका +0.3 MB है। तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो कोई साइन चेंज तो नहीं होगा, ये दोनों ऐड होने वाले, राइट, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द साइन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.2 0.3, इट इज 0.5, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या है, -0.2, ये नेगेटिव से, ओके। ये आके आपका +1, तो ये भी आपका पॉजिटिव +1, ओके गुड। तो ये भी आपको वापस प्लस हो जाएगा। यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर, ये दोनों पास में लगे थे तो उसका डिफरेंस 0.5। ये आपका राइट आर्म है और ये लेफ्ट लेग है, सो डिस्टेंस बढ़ा तो आपको वोल्टेज का डिफरेंस भी बढ़ गया, राइट। ये चेस्ट के पास था, ये चेस्ट से दूर है, another point. Okay, now this is +0.3, it is connected to negative, so I would say -0.3, and then ये okay, +0.0 MB पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ये 1 हो गया, so that would be +0.7, राइट। सो सेम हियर, देखो आपका जो डिफरेंस है बड़ी है, लेफ्ट साइड और लेफ्ट लेग में लगने का टाइम डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ा तो आपका डिफरेंस भी बढ़ी है, ओके। सो दिस इज अ गुड डायग्राम टू सी। यू कैन सी हाउ अ ट्रायंगल इज मेड अराउंड द हार्ट, सो दिस इज नोन एज द एंडोवन्स ट्रायंगल, ठीक है ना। इट हैज़ गॉट अ लॉ कि जो लीड 2 का पोटेंशियल है, फिर यू कैन से इट एज लीड पोटेंशियल बोलो तो बेटर होगा, प्लस लीड 2 का पोटेंशियल आके आपका जब लीड 1 का और +3, तो लिमिट 2 इज इक्वल टू लिमिट 1 +3, इसका पोटेंशियल। जनरली क्या होता है, वी कैन प्रूव दिस थ्रू सिंपल वे ऑफ RHS इक्वल टू LHS। डोंट गेट ऑफेंडेड, लाइक MBBS में क्यों मैक्स कर रहे हैं, बट this is a very common thing what we do, LHS equal to RHS. So on taking this side, one side, okay, first हम लोग explain 2 क्या था, आपका राइट आर्म, राइट, I would write RA,
Okay, voltage of right arm, it was negative. And next is left leg, right? So left leg पॉजिटिव इक्वल टू ये क्या था आपका फर्स्ट कि सेम आर ए, और ये पॉजिटिव साइड क्या था, एल आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट। अभी ये जो थर्ड लीड क्या था, इसका वोल्टेज क्या था, लेग था, राइट। और आपका नेगेटिव क्या था, आपका लेफ्ट आर्म। कट इट, LHS is equal to RHS, दैट इज सिंपल थिंग, सेम उसी इसीलिए वो फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ दिखेगा आपको कि आपका जो ये है 2, ये 2 है ना, लीड टू क्या था, 0.2 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.7, यू कैन सी इट, राइट। सेम, सिंपल, सिंपल है। ठीक है, तो अभी आपका जो ये तीनों लीड्स में क्या होगा, जब का रिजल्टेंट होगा कि आपका जो पी वेव्स और टी वेव्स सारे पॉजिटिव आएंगे, इवन आपका QRS कॉम्प्लेक्स भी पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, सो सभी पॉजिटिव आने वाले हैं, इसलिए ये ना जनरली अरिथमियास के लिए डायग्नोसिस में यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर यूजिंग कि अगर मान लो वेंट्रिकल या फिर एट्रियल मसल में या फिर कंडक्टिंग सिस्टम में कोई इश्यूज आ जाए, तो उसका डैमेज के लिए ये जो लिम्ब लीड्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। Now next we will go for augmented list. Cannot diagnose arrhythmias used for ventricular muscle, atrial muscle and Purkinje conditions. ठीक है, augmented या फिर यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लिम्स होते हैं। देयर आर 1 लिम्ब which will be positive connected to the positive end, and there is the other two limbs would be connected to the negative end. ठीक है, देखो इसका ऑगमेंटेड मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज्ड इसका जो सिंस इसमें जो 2 लिम्स यूज करते हैं और दोनों को नेगेटिव साइड में कनेक्ट किया जाता है, इसका वजह से आपको जो फाइनली जो आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है, इसलिए इसको ऑगमेंटेड बोलते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज पोटेंशियल, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये LRF अभी तक तो समझ आइएगा, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट फुट। ठीक है, दिस 3 एब्रिवेशंस, A is for augmented, V is for voltage। ठीक है, इसमें देखो कैसा लगा है, यहाँ पे जो AVR है तो RA में कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव नोड, ये जो आपका पॉजिटिव एंड है वो आपका कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब आर मतलब पॉजिटिव एंड कहाँ कनेक्टेड है वो पता चले, बाकी दोनों बाकी रेस्ट बचा कुचा में खड़े रहे। देन यहाँ पे क्या है, ये AVL है, ये लेफ्ट आर्म में कनेक्टेड है, एंड देन दिस इज AVF, तो ये आके आपका लेफ्ट लेग से कनेक्टेड है। ठीक है, ना फीचर इज कि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अच्छे से बताते हैं फ्रंटल पेन, ऑन द फ्रंटल पेन में जो भी रिक्वायर्ड है उसको बता सकते हैं। एंड नाउ दिस फॉर्म्स अ हेक्स एक्सियल रेफरेंस सिस्टम। ओके, now ना एक बहुत important concept है which I wouldn't be taking in this class, that is the cardiac axis। ठीक है, cardiac vector you can say, और is QRS axis। ठीक है, ये बहुत important concept है, आपका हार्ट का कौन सा साइड टिल्टेड है वो होता नहीं, तो इसमें वो एक मेन important काम, it forms an hexaxial reference system। ओके, एक एक्सेल सिस्टम बनाते हैं, आई शो यू द डायग्राम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, उस एक्चुअली आई हैव नॉट टेकन दिस बिकॉज उसका कंटेंट मेनली बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस इज रिलेटेड टू ऑल द डिजीजेस एंड clinical correlations, so I thought of taking it in the next class। Okay, so now this would help us determine the cardiac vectors and cardiac axis I have told you. The next is chest lead. Chest leads are of 6, V1 V2 V3 V4 V5 V6। ओके, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहेगा, एंड एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल आके आपका राइट, लेफ्ट और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग सबके साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एक ही टाइम में। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस पोजिशंस। ये जो पोजिशंस है ये फिक्स्ड है, V1 कहाँ पे है, V2 कहाँ पे है, ओके, V3 V4 V5 V6, ये सब पोजिशंस फिक्स्ड होते हैं जहाँ पे लगाना है। यू कैन सी हियर ऑल्सो, this also you can see। so ये जो
ये क्या करता है, ये जो जो पोटेंशियल्स बीनीथ, इमीडिएटली बीनीथ में जो भी पोटेंशियल्स है उसको टेकअप करेगा, ठीक है। और अगर कोई भी सी और अगर कोई भी माइन्यूट एबनॉर्मलिटीज है, स्पेशली वेंट्रिकल्स, देखो बिकॉज इट इज नियर द वेंट्रिकल्स, राइट। जो वेंट्रिकल एरिया है वो सबको उसका पास में, तो ये मेनली वेंट्रिकल्स के जो भी डिजीजेस है उसको आइडेंटिफाई कर ले। मेनली द एंटीरियर वेंट्रिकल वॉल, यू नो, इफ यू नो दैट कि बहुत सारे एंटीरियर होता है, बेस होता है, पोस्टीरियर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट तो ये जो साइड्स है, ठीक है, ये साइड्स तो जो मेनली जो आपका हार्ट का जो चेस्ट की तरफ में रहेगा उसको एंटीरियर वॉल बोलते हैं। एंड दैट एंटीरियर वेंट्रिकुलर वॉल का स्पेसिफिकली एबनॉर्मलिटीज ये ढूंढ सकता है, ठीक है। नाउ व्हेन यू सी द ग्राफ्स ऑफ दीज आउट, मतलब फ्रॉम दीज लीड्स, चेस्ट लीड्स जो आउटपुट होगा, तो व्हेन यू विल सी कि V1 एंड V2 का जो है वो ग्राफ्स नेगेटिव, ग्राफ नेगेटिव होने से आपका इस तरह कुछ होगा, राइट। और जो V3, V4, V5, V6 ये जो सब जनरली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई V1 एंड V2 इज negative? Because it is close to the base of the heart. Now this diagram shows this. If I'll zoom in, देखो जब आपका हार्ट डिपोलराइज होता है, तो डिपोलराइज होता है नेगेटिव हो जाना, तो ये जो पार्ट है, फर्स्टली आपका सेप्टम और एपेक्स जो होता है वो आपका डिपोलराइज होता है, राइट। सो दे हैव द नेगेटिव चार्जेस, देन इट गोज लाइक दिस, ओके। नाउ फर्स्टली व्हाट हैपन इज आपका बेस आपका पोलराइज होता है, डिपोलराइज होता है, एंड देन उसके बाद हार्ट हैज गॉट अ बेस टू, ठीक है। ये नहीं है बेस, हार्ट का पीछे जो पलक पार्ट है, जो हार्ट होता है, when you will read you will see the what is the base and what is the wall. So and it has got an apex, apex is different, base is different, ठीक है। this is the apex. So पहले आपका हार्ट का बेस से थ्रू एपेक्स में आता है आपका जो पोटेंशियल से डिपोलराइजेशन होता है वो ऐसा होता है। so since it is closer to the base, and why is it base mostly negative? because जब आपका depolarize होएगा वो तो आपको septum, base and then to the apex and to the walls, ठीक है, ऐसा होता है। repolarization, अभी इस लोग पहले depolarize हो तो ये पहले depolarize होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो आपका जो एरियाज है, आपका जो ये पहले जो वॉल्स है ये पहले repolarize होगा, मतलब ऐसे चलने वाला है वापस, वो वाला डायरेक्शन में आएगा। तो जिस तरह से डिपोलराइज होगा उसको ऑपोजिट, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बेस डिपोलराइज होने वाला है, तो इसका मतलब कि आपका बेस, एपेक्स और जो सेप्टम है वो ज़्यादा देर आपका डिपोलराइज होता है, मतलब ज़्यादा देर आपका नेगेटिव होता है। तो आपका जो ग्राफ है V1 और V2 का, जो आपका बेस के पास होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव ग्राफ मिलेगा, ओके। देन see, now finally this is it, and जो इस तरह पोजीशन है, देखो क्या बढ़िया डायग्राम है। AVR होता है यहाँ पे, AVL होता है, ये लीड 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये AF है, ये AVF है और ये 3 है। okay, now then see V1, V2, V3, V4, V5, 6 how they form an hexaxial reference system। देखो हेक्सागन की तरह चारों तरफ में, चारों एरिया में ये लगाया जाता है। एंड यू कैन सी, आई टोल्ड यू कि जो लीड V1 होता है वो नेगेटिव होता है एंड V2 भी नेगेटिव होता है, ओके। रेस्ट ऑफ ऑल आर मोस्टली पॉजिटिव, एक AVR भी होता है जो नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दीज एक्चुअली आर द ग्राफ्स विच आर नॉर्मली नेगेटिव। आई विल नाउ शो दैट इट हैज़ ऑल्सो गॉट द कंटेंट। तो यहाँ पे एस वेव नहीं है, सी क्या बढ़िया से डिपेक्ट किया, राइट। सो आई शो यू नाउ, एंड दिस इज डिटेलिंग, ओके। जब पी वेव होता है, नाउ दिस स्ट्रिक्टली फॉलोड कि पी वेव लेस देन और इक्वल टू 0.10 सेकेंड्स, it should not increase, it will not increase, okay। then amplitude should be less than or equal to 2.5 mm, okay, should not be more than that, ठीक है। और configuration क्या होता है, it will be upright in lead 1, AVF and V3 to V6, okay। let's see, lead 1 में upright है P wave, yes it is। then उसके बाद क्या होता है AVF में, yes it is। देन क्या V3 to V6, कहाँ पे V3,
P3 ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब अपराइट है। देन आपका जो अपराइट इन्वर्टेड या फिर बाइफेसिक हो सकता है इन 3 AVL, V1 और V6 में। ये ग्राफ उल्टा हो गया, V1 में उल्टा हो गया, और क्या है V6, इसमें भी हो सकता है बोला उल्टा। ओके, देन ये सिट्स V4, हाँ। देन उसके बाद 3 में भी बोला है, हाँ हो गया, ठीक है। नाउ द बेस्ट स्टडी वेर यू कैन स्टडी P wave is best study in 2 and V1 का जो ये लीड 2 में और P wave को और V1 में आप इसको बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज PR इंटरवल। PR इंटरवल है, ओके। तो इंटरवल विल बी that is from including PR segment and P wave, ठीक है। तो it would be, I have already told the duration 0.12 to 0.20 seconds. Normally there should be no variation, okay. Now QRS complex and lead amplitude में देखा जाए तो आपका जो lead 1 2 3 AVR AVL AVF that is आपका limb leads, बाइपोलर एंड ऑगमेंटेड लीड्स, ये दोनों आपका मोर देन और इक्वल टू 5 mm होता है। जो चेस्ट लीड्स है वो 10 mm या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। सी वो ज़रा लंबा लंबा है, उसमें फिर भी थोड़ा छोटा छोटा है, राइट। नेक्स्ट इसमें कॉन्फ़िगरेशन आके जो आर डोमिनेंट है, जो आर वेव है उसमें डोमिनेंट होता है किस किस में, 1 में 2 में V4 to V5 V4 to V6। 1 में डोमिनेंट है, ये आर में बड़ा है, सेमी डोमिनेंट है, देन V4 to V6 सब में बड़ा है, ठीक है। एस वेव आके डोमिनेंट है AVR में, V1 में, V2 में। देखो एस वेव, यस, इसमें AVR में डोमिनेंट है एस वेव। और क्या बोले, और किस में बोले, ये आपका AVL में और AVR में, V1 और V2 में। हाँ यस, आई शोड यू, ये V1 में भी है और V2 में भी। देखो एस वेव कितना डोमिनेंट है। देन नेक्स्ट इज आपका इधर एस या आर वेव इन 3 AVL AVF V3, ओके। यहाँ पे डिपेंड करता है आपका हार्ट का पोजिशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज क्यू वेव। क्यू वेव इज स्मॉल इन 1 AVL V5 V6, 1 AVL, क्यू वेव छोटा देखा, V5 V6 क्यू वेव, ओके। दिस इज क्यू वेव, QRS है ना, क्यू वेव। एंड देन QS कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है AVR में। QS कॉम्प्लेक्स मिलने से सी कौन सा में है आपका AVR में, राइट। यस AVR में है, देखो QNS से, आर वेव तो अंदर है, QNS कॉम्प्लेक्स है। देन आपका डीप क्यू वेव्स और जो डीप ओकेजनली होगा V1 और V2 में ओकेजनली प्रेजेंट होगा, और कभी कभी आपका लीड 3 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो लेस प्रोमिनेंट हो जाएगा जब आपका इंस्पिरेशन डीप होएगा, ठीक है। एंड देन इफ क्यू वेव हैज अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, seen with a greater amplitude, it is pathological. It's not the width, okay. So Q wave with greater amplitude, it's pathological. So there is a topic cardiac axis या फिर cardiac vector that I would be taking in next class. क्या wording in this, क्योंकि उसका main content आके correlation से जो I would prefer कि मैं उसको next class में लेके जाऊँ. So that's it for today. Much more videos coming forward. Do like, share, comment, subscribe, and do hit the bell button. Please do subscribe. This all will add value to my all my mehnat, okay. So whatever improvement you guys would like to see, please do say in the comment section. So thank you so much.